Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. Once again, myself Aminul Islam with set. So today we will discuss the different types of sets. So what are the different types of set? Just see the chart. Set. So I have divided this set in 10 different types. So these 10 types of sets are empty set, singleton set, finite set, infinite set, equal set, equivalent set, subset, superset, universal set, and last one is power set. Now we will discuss these 10 types of sets one by one, and I will give you a suitable example. So let's start. So first one is empty set. So what is empty set? The set which does not contain any element is called empty set. Students, कई सारे मोमेंट में ऐसा होता है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं. अगर ऐसा केस हुआ तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे. तो चलो पहले डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देते हैं. आई होप योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. ओके, सो द डेफिनेशन इज द सेट which contains no element is called empty set. It's called empty or void or null set, and it is denoted by null. This one. Whenever we will write the null set, we use this symbol phi, right? So this is the symbol of null set. Now let's take an example to understand the void set or null set or empty set. So the example is, suppose example A is a set given here. A is equals to x such that x belongs to n and x is less or equals to 0. See here, I am giving here a set A in set builder form, and you are trying to find out which are the elements of the given set. Now the set is A is equals to x such that x belongs to n. This n is natural number. That means we have to choose the elements from natural number. One more condition is there. X is less than equals to 0. X जो है इसको 0 से छोटा होना पड़ेगा या फिर उसका इक्वल भी चलेगा. So ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या कि वो जो नेचुरल नंबर 0 से छोटा है या फिर 0 से इक्वल है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर. सो यहाँ पर सेट का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग कोई एलिमेंट ढूंढ नहीं सकता. दैट्स व्हाई दिस इज ए null set. So this is exactly null set. So this is the example. Next one is singleton set. So just focus on the word single. So what does it mean? Exactly one, right? The same thing is here also. Singleton set means the set which contains exactly one element. अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, right? So what is the definition? The definition is the set which contains only one element is called singleton set, is called
singleton set. Right? Now let's take an example. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. So suppose A is a set and A equals to x such that x belongs to natural number and x is lesser or equals to 1. So अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो x का एलिमेंट A का एलिमेंट अगर हम लोग ढूंढे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो है 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पर x को नेचुरल नंबर में भी बिलोंग करना चाहिए और x को लेस देन इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सिर्फ एक एलिमेंट, वो है 1. सो दिस इक्वल्स टू 1. ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है? और सो वैसा एक ही एलिमेंट है, वो है 1. राइट? क्योंकि 1 के छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं. ओके, सो दिस इज सिंगलटन सेट. नाम सुन के ही पता चल जाता है सिंगल, सो उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट रहेगा. ये नहीं कि यहाँ पर हर वक्त 1 ही रहेगा, दूसरा कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा 1 होगा. राइट? ये भी सिंगलटन सेट है. मान लो कि यहाँ पर सिर्फ ए है, ये भी एक सिंगलटन सेट है. मान लो कि यहाँ पर 0 है, ये भी एक सिंगलटन सेट है. सो these are the examples of singleton set. Next is finite and infinite sets. So what is the definition? A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise infinite. अगर कोई ऐसा सेट है जो empty है या फिर उसके अंदर कोई डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रहता है या फिर वो सेट एम्प्टी होता है, तभी उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं. अगर ऐसा हुआ कि वो सेट एम्प्टी है या फिर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, मान लो कि वो एम्प्टी भी नहीं है और डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं है, तो ऐसा सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे. इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज इनफाइनाइट. अगर ये दोनों जो केस दिया हुआ है एम्प्टी और डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये दोनों को छोड़कर अगर और कुछ भी हुआ तो वही हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. चलो एग्जांपल लेते हैं. सो एक मान लो कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू नल सेट. सो क्योंकि ये नल सेट है, सो जब भी वो नल सेट होगा वो हमेशा फाइनाइट सेट ही होगा. राइट? नाउ one more example. Suppose B is equals to A, C, 3, 9. Right? Now see here, there are 4 elements. Only 4 elements, A, C, 3 and 9. So this is the definite number of elements. एक particular number of elements है, a particular number है 4. 4 एलिमेंट यहाँ पर है, इसीलिए ये हो गया फाइनाइट सेट. राइट? अब चलो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम चूज कर लिया. सो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता है. कोई भी एलिमेंट के साथ फिर से एक जोड़ दो, सेकंड उसके बाद वाला जो एलिमेंट होता है उसको मिल जाएगा. राइट? सो ये कभी खत्म नहीं होता है. मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कोई डेफिनाइट नंबर नहीं है. माइंड इट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in this set is not definite number, right? That's why this is a infinite set, right? So infinite set भी 2 kinds का होता है. एक होता है countably infinite और एक है uncountably infinite. नाम से ही तुमको पता चलेगा कि countably infinite मतलब यहाँ पर हम जो infinite set लेंगे वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन वो एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं. राइट? यहाँ पर जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, यहाँ पर वो तो इनफाइनाइट होगा ही और उसका एलिमेंट को हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं. राइट? उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं. मान लो कि इरेशनल नंबर का जो सेट है उसके बारे में बोल रहा हूं. सो इरेशनल नंबर का सेट का तो कोई पैटर्न नहीं है. उसका जो नंबर वो इरेशनल नंबर है उसका तो पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं है. राइट? उसको P/Q फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है और कौन सा एलिमेंट्स आगे होगा कौन सा बाद में होगा ऐसा नहीं कर सकते हो. राइट? दैट्स व्हाई जो इरेशनल नंबर का सेट है वो है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट.
जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर रहता है, इसीलिए रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का जो सेट है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबली इनफाइनाइट। सो यहाँ पर अगर एग्जांपल चाहे तो यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पर r होगा या फिर r माइनस क्यू, ये क्या है, दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, राइट। यहाँ पर z भी ले सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इक्वल से ही पता चलता है कि दोनों सेट इक्वल होगा। सो कब हम इक्वल बोलते हैं? जब हर तरह से दो चीज सेम होता है, इक्वल होता है, तभी उसको इक्वल बोलते हैं। सो टू सेट्स A and B are said to be equal if they contains exactly same element। दोनों सेट के अंदर ही सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे, राइट। एंड वी विल राइट एंड we will write A is equals to B। यही तो है इक्वालिटी का साइन, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर A is equals to B। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि A is given here, A is equals to 1 2 3, right, and B is given and B is equals to X such that x belongs to n and x is less or equals to 3, right। so यहाँ पर जो सेट B है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स रहेगा? वो सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, राइट। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है? सो ऐसा 3 एलिमेंट है, एक है 1 2 and 3। so ultimately B will be B is equals to 1 2 3। वही सारे 3 एलिमेंट यहाँ पर जो A के अंदर था वही 3 एलिमेंट B के अंदर भी है, and that's why these two sets are equal। so you can write here A is equals to B। now suppose there is one condition that you have to show that two sets are equal। मान लो कि तुम ए दिखाना चाहते हो कि A is equals to B, इसको तुम प्रूफ करना चाहते हो। सो इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो है, तुमको फर्स्ट दिखाना पड़ेगा कि A is a subset of B, this one, and then you have to show that B is a subset of A। अगर कहीं पर ये दोनों को तुम प्रूफ कर सकते हो, A is a subset of B and B is a subset of A, तभी जाके ये दोनों मिलकर बताता है कि A is equals to B। This two says that A is equals to B। ओके, ये क्यों इसको हम लिखते हैं? क्योंकि मान लो कि X is greater equals to Y है और Y is greater equals to X है। X को बोला जा रहा है वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, फिर Y को भी बोला जाता है कि वो X से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ तभी होल्ड कर सकता है जब X इक्वल्स टू Y होता है, राइट। सेम थिंग यहाँ पर भी है, ये दोनों एक साथ तभी होगा जब A and B इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई whenever you will prove this the two set equal, then you have to prove these two, A is a subset of B and B is a subset of A। okay, this one is equivalent set, right। so what is equivalent set? so before going to the main discussion of equivalent set, we will learn one more thing because it is required here, equivalent set, right। so to read this one we have to learn one more thing। इसको पढ़ने के लिए हमको जो चीज चाहिए वो है कार्डिनलिटी नंबर। सो कार्डिनलिटी नंबर। सो एक कार्डिनलिटी नंबर क्या है?
कार्डिनलिटी नंबर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। कोई भी सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स रहता है उसी को हम लोग कार्डिनलिटी नंबर बोलते हैं। सो कार्डिनलिटी नंबर is cardinality number of a set A is denoted by is equals to and defined by cardinality number of A is equals to number of elements in A. So what is cardinality number? Cardinality number of a set A एक सेट है, तो इसका कार्डिनलिटी नंबर को हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, राइट? सो कोई भी सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स होता है वही है उसका कार्डिनलिटी नंबर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज A सेट A इज इक्वल टू A B C। ए के अंदर ए सारे एलिमेंट्स है, सो इसका कार्डिनलिटी नंबर कितना होगा? सो n ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। सो ए के अंदर यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, and that's why this will be 3. Now think about this one, cardinality number of null set। इसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलो पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। सो टू सेट्स A and B are said to be equivalent if cardinality number of A is exactly equal to the cardinality number of B। That means अगर कोई भी दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में सिर्फ बोल रहा हूं, और जो एलिमेंट्स रहता है उसके अंदर उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल, मान लो कि A इज अ सेट 1 2 3, राइट? एंड B इज अनदर सेट A B C, राइट? सी हियर, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है A के अंदर वो है 1 2 3, B के अंदर जो एलिमेंट है वो है A B C। These elements are not same। यहाँ so cardinality number of A is equals to 3. Also cardinality number of B, this is also 3, and these two are same। Cardinality number of these two sets are same। That is cardinality number of A is equals to cardinality number of B। और जब भी कार्डिनलिटी नंबर सेम होता है तभी उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। सो हियर A and B are two equivalent sets। And the next one is subset। तो सबसेट क्या चीज होता है? A set A is called a subset of B। एक सेट दूसरे किसी सेट का सबसेट होता है। And see the definition, a set A is called a subset of B if every element of A, mind it, every element of A is also an element of B, and we will write A is a subset of B। यहाँ पर जो सिंबल है this one, A less than equals to नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है, right? This is the symbol of subset। this one is the symbol of subset, right? That means A is a subset of B। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि A is equals to 1 2 3 and B is a set where B is equals to 1 2 3 7 9 8। चलो अब डेफिनेशन से टैली करते हैं इसको। A का सारे एलिमेंट को B का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग A को बोलेंगे सबसेट ऑफ B। सी है 1 यहाँ पर A के अंदर है, वो 1 is also an element of B। 2 है, 2 is also an element of B। यहाँ पर 3 है and 3 is also an element of B। B के अंदर जो एक्सेस एलिमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है।
सिर्फ हमको देखना है यही कि इसका जो एलिमेंट्स है, ए सेट का जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स क्या यहाँ पर है। अगर रहता है तो वो सबसेट हो जाएगा, अगर नहीं रहता है वो तो वो सबसेट नहीं होगा। और जब सबसेट नहीं होगा तब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, सिर्फ काट देंगे, राइट। सो नाउ टेल मी, इज इट a subset of this one? Exactly, A is a subset of B and we will write here A is a subset of B, right? अगर तुम सोचोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी हैं। मतलब जो नेचुरल नंबर सेट के अंदर है जो सारे एलिमेंट्स वो इंटीजर सेट में भी है, और इसीलिए नेचुरल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब कमेंट बॉक्स में तुम लोग जो सेट के बारे में बताओगे वो है, मेरा क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे कि क्या रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। अगर है तो क्यों, जरूर बताना। नेक्स्ट वन इज superset, right? So before going to the main discussion of superset, let's learn one more thing, the proper subset. Subset तो मैंने सीखा, अब proper subset क्या है। यहाँ पर proper जो word है उसी से तुम लोग देख लो कि proper मतलब exactly ना। So A is said to be a proper subset of B if B can B contains, if see here B contains, I'm sorry, this is contains, right? If B contains all the elements of A and there is at least one element in B which is not an element of A. A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स तो B का एलिमेंट होगा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट B के अंदर ऐसा एलिमेंट रहेगा जो A के अंदर नहीं रहेगा। B का एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा रहेगा जो ए के अंदर नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लो कि ए इज ए सेट एंड ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, दिस वन। नाउ सी हियर, इस डेफिनेशन के मुताबिक ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर रहना चाहिए। हाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 है, लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट है 3। ए एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, राइट। सो एटलीस्ट यहाँ पर जो सेकंड वाला जो सेट रहेगा वहां पर हमेशा एक एलिमेंट रहेगा, एक सिर्फ एक नहीं, एक से भी ज्यादा रह सकता है, एटलीस्ट वन, मिनिमम 1 एलिमेंट रहेगा, उससे ज्यादा भी नंबर रह सकता है जो इसके अंदर नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तभी इसको हम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, जब भी प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तब भी ए सिंबल यूज करेंगे। सी हियर, दिस सिंबल, दिस वन इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, जब प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तब सिर्फ ए सिंबल का यूज करेंगे, और जब सिर्फ सबसेट बोलेंगे तब यहाँ पर और एक इक्वल टू साइन जुड़ जाएगा, राइट। सो प्रॉपर सबसेट का मतलब है ए सेट हमेशा बड़ा ही होगा, इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं, राइट। दैट्स व्हाई वो जो इक्वलिटी साइन होता है उसको हम लोग हटा लेते हैं, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड द सिंबल ऑफ सबसेट इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जब सिंपली सबसेट बोलेंगे तब ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे, और जब प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तब ए इज ए सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे। अब चलो सुपरसेट बोलते हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो ए को जब हम बोलते हैं जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, उसी वक्त हम लोग बी को बोलेंगे सुपरसेट। सो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, राइट। So from the same definition, you can write here, A is said to be a proper subset of B if B contains all the elements of A and there is at least one element in B which is not element of A. And here B is called superset, right? So चलो दोनों हो गया, proper subset भी हो गया और superset भी हो गया. So this is the
सुपरसेट, राइट। और ये जो है ये है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर जो वर्ड है यूनिवर्स, यूनिवर्सल का अगर यहाँ पर जो मेन वर्ड है सो वो है यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स वो चीज है जिसके अंदर सब कुछ रहता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इज एंड द सेट व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट और एवरी सेट्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, वही हो जाता है यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सब कुछ रहता है, राइट। So the definition is a set that contains all sets in a given context. Mind it, in a given context. ये बात बहुत अहम बात है कि कोई पर्टिकुलर गिवन कॉन्टेक्स्ट में जब हम किसी के ऊपर, किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम लोग सोचेंगे, राइट। सो पर्टिकुलर गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट। टेक एन एग्जांपल, सपोज A is a set of all the students of class 11A, B एक सेट है, set of all students in class 11B, and C is a set of all students in class 11C, right? So यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, वो क्लास 11 का जो स्टूडेंट्स है वो सारे स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें तो वो यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा U से डिनोट करेंगे या फिर S से डिनोट करेंगे, S इक्वल्स टू। तो हम कौन सारे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर? क्लास 11 का जितने सारे बच्चे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, राइट। यहाँ पर एक बात बोलना है कि मान लो कि यहाँ पर क्लास 11 का और कोई सेक्शन नहीं है, राइट, और कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ ये तीनों डिवीजन है, राइट। तभी वो जाके यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है क्या वो इंस्टीट्यूट का सारे स्टूडेंट्स को अगर ले लें? हाँ, वो भी हो सकता है। जिस इंस्टीट्यूट का क्लास 11 का यहाँ पर बात कर रहा हूं, वो इंस्टीट्यूट का अगर सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कंसीडर कर ले तो वो भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या फिर इंडिया का जो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर ले तो वो भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, राइट। सो हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग, हमारा जो यहाँ पर टारगेट होगा वो देखना है कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। कोई भी बड़ा सेट तुम लोग यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो, लेकिन देखना है कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्लास 11 के बारे में बात कर रहा हूं तो क्लास 11 का ले लिया, बस हो गया। और कितना बड़ा मुझे लेना है उसके बारे में नहीं सोचना है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज पावर सेट, राइट। सो यहाँ पर जो पावर होता है वहीं से तुम लोग देख लो कि पावर किसको बोलते हैं, जो इंडिसेस होता है, नंबर के ऊपर जो नंबर होता है वही होता है पावर। सो इसको हम लोग क्यों पावर सेट बोलते हैं उसके बारे में बाद में बात को पढ़ लेते हैं। सो द पावर सेट ऑफ ए सेट ए कोई भी सेट हो सकता है, और इसको पावर सेट को हम लोग लिखेंगे P ऑफ ए। पावर सेट का पहला लेटर P है, इसीलिए हम लोग उसको P ऑफ ए से लिखते हैं। एंड डिफाइंड बाय, ये चीज क्या है, यहाँ पर वो बोला गया है P ऑफ ए इक्वल्स टू ऑल द सबसेट्स ऑफ ए का जितने सारे सबसेट्स होता है, ए का पॉसिबल जितने सारे सबसेट्स होता है, वो सारे सबसेट्स को अगर दूसरा कोई और सेट के अंदर ले लेते हैं एक साथ, तो वही बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए का सारे सबसेट को हम लोग को फाइंड करना है और वो सारे सबसेट्स को हम लोग एक सेट के अंदर ले लेंगे और वही हो जाएगा पावर सेट। मतलब पावर सेट्स का जो एक एक एलिमेंट होता है वो हर एक एलिमेंट ए का सबसेट होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो सेट होता है एक एक एलिमेंट, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2, ए के अंदर ए दोनों एलिमेंट है, राइट। अब इसका सबसेट हम लोग लिखेंगे। सो इसका सबसेट क्या होगा, इसका जो सबसेट्स है, नल या वॉइड सेट कोई भी सेट का सबसेट होता है, राइट।
क्योंकि डेफिनेशन क्या है सबसेट का, अगर नाल का सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है तभी वो सबसेट हो जाएगा, लेकिन नाल के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, राइट? दैट्स व्हाई null is subset of any set, so that's why we can choose this one. Next, यहाँ पर देखो वन सिर्फ एक एलिमेंट सिंगलटन सेट वन ले लिया, तो वो भी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पर टू ले लिया, ए भी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 दोनों को एक साथ ले लो और ए भी हो जाएगा सबसेट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ईच एंड एवरी सेट विल बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट का दो सबसेट हमेशा रहता है, एक है नाल सेट और दूसरा है वो खुद, राइट? सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए। अब ये सारे सबसेट्स को अगर हम लोग और एक सेट के अंदर ले लेते हैं तो यही हो जाता है पावर सेट ऑफ ए। सो दिस इज अल्टीमेटली पावर सेट ऑफ ए। सो दिस वन, ओके। नाउ सी हियर, यहाँ पर एक जो बात बोलना है वो है कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट। पावर सेट का कार्डिनलिटी नंबर के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा। पावर ए के अंदर जो एलिमेंट, मैंने जो एग्जांपल लिया था, ए के अंदर एलिमेंट कितना था? दो एलिमेंट था। देयर वाज ओनली टू एलिमेंट्स, ए इज इक्वल्स टू 1 2, राइट? सो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2, राइट? अब देखो पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। सो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट, अगर इसको हम कैलकुलेट करें, सो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिस वन, दिस इज पावर सेट। यहाँ पर सेट जुड़ा हुआ है, मतलब पावर सेट भी एक सेट होता है, राइट? सो कार्डिनलिटी, उसका कार्डिनलिटी नंबर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इक्वल्स टू कितना है? 4। सो 4 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2, दैट मीन्स 2 to the power कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए, क्योंकि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए कितना है? 2। सो यू कैन राइट हियर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए। यही है फॉर्मूला। कोई भी अगर सेट है तो उसका कार्डिनलिटी नंबर पावर में चले जाएगा, अब तभी हो जाएगा वो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पावर सेट, राइट? तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, एंड द एग्जांपल इज a is equals to 1 a b c 5 9 and so on, right? So cardinality number of a is equals to how much? 1 2 3 4 5 6, राइट? सो पावर सेट का अगर पूछा जाए कि पावर सेट का कार्डिनलिटी नंबर कितना होगा, तो फटक से तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू 2 to the power how much? Cardinality number of A, this equals to 2 to the power 6. So this is the answer. Okay, कमेंट बॉक्स में तुम लोग जो हमको बोलोगे वो है कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नाल सेट। नाल सेट का जो पावर सेट होता है उसका कार्डिनलिटी नंबर कितना है ये जरूर बताना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। होप ऑल ऑफ यू have enjoyed my video. If so, then please like, share and comment it. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।